Thank you, sir. Yes, thank you, Satya. And we'll take just 1 second. Santosh Muleji from Nasik, working in real estate, working on properties all over India. Welcome, Santoshji. Niru Tyagiji from Noida. Niruji, welcome. Yes, yes. Satya, I would request you that people are also from south part of India, so we would deliver in both the languages. Please keep your conversation in both the languages. And friends, whenever you think that due to language, you are not going to learn something or something is not being understood by you, then you can stop Satya and he'll deliver in the different language. Different means if in Hindi, then he'll deliver in English. और अगर वो इंग्लिश में डिलीवर कर रहे हैं तो वो आपको हिंदी में करेंगे. लैंग्वेज की वजह से हमें यहाँ कोई इशू नहीं है. We can deliver in both the languages, and the session is getting recorded. पारुल जी, आपको वॉइस क्लियर नहीं है. बाकी सबको वॉइस कैसा है? It's good. Good. Okay, पारुल जी, आप अपना कनेक्शन अपने एंड पे चेक कर लेंगे प्लीज. Okay, so the session is getting recorded. Once the class finishes, it will finishes around 10 o'clock. So I would request you to keep one pen and paper and water bottle with you, because this 120 hours duration is a long duration and you should not distract. And whatever thing you think that you require to note it down, so you can put it on paper. And in case you have any question, so rather asking it in between, Satya will take a break, Satya will take a pause. And in that pause time, we can ask the questions and Satya will answer those questions here. And the session will be delivered in mobile application, wherein you can watch it for next 7 days. The people who are here for this one course only, they will get it for 7 days. And those who are Prime members of Margdarshan Guru and People Trainers Prime community, they'll get it for a longer duration. And this way, not only the recording, after recording, because the recording will come in your application tomorrow morning and you have to download that application. I'll put the link in the chat box. And tomorrow onwards, means not tomorrow, tomorrow is Sunday and we have another session on Sunday. Monday onwards, in case you could not learn something or you think you stuck somewhere, some topic is not clear to you, me and Satya both are available for telephonic conversation with you, telephonic support between 10 to 12 every day, Monday to Friday. You can connect with us and we will help you to establish your Google My Business page, Google presence, and the optimization of the same. And this way, you would be able to do this. And this is a wonderful kind of exercise. And for free, you can make your footprints over there. Now, Satya, over to you, please continue. Thank you, sir. थैंक यू सर. काफी समय लगे आपको बताने के लिए. फ्रेंड्स, आज का पूरा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज अबाउट द गूगल, how you can rank your page on Google and what is Google My Business. But before understanding Google My Business, I want to know from your side, what is the importance of Google, especially Google? What is the importance of Google, especially if you list your service, etc. on the Google? Please, you can unmute yourself and it will be better. You can write, please. Please be short, be precise. People can find us easily. Yes. Or people can find niche easily if we are listed in that thing. Okay. Next one, please. सर, आपकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है ग्लोबली. Okay. Next one, please. Number 1 search engine. Okay. Next one, please. देखिए, आपके सारे सवाल सही हैं, but most important is most of the 95%. Okay. What products? Okay, look at this. Most of the smartphone are using Android. More than 90%, 95% smartphone are using Android. ठीक है. अब जब Android आप यूज करते हैं, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, तो फ्रैंक विद यू, ये सेशन 2 घंटे का नहीं होने वाला. इस सेशन के बाद we will have a review session of 1 hour plus,
ताकि चीजें हो पाए, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक शायद 2 घंटे में मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा और आपके लिए डाइजेस्ट करना ठीक नहीं होगा. इज इट कंफर्टेबल टू ऑल ऑफ यू? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन ताकि मैं आपको ज्यादा दे पाऊँ. जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन. चलिए, सबका सवाल में है. धन्यवाद. आप समझते हैं कि गूगल है क्या प्लीज. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द गूगल माई बिजनेस, इसके तो 2 पार्ट में डिवाइड मैंने कर रखा है आपका. पहला पार्ट है कि व्हाट इज गूगल माई बिजनेस. सेकेंड पार्ट इज द गूगल. द फर्स्ट पार्ट इज गूगल. गूगल itself is a search engine. Search engine means whatever you put on the particular platform, it search. And these search engines works on the crawlers. Means they read each and every word. They read each and every topic. So means whatever your content putting on the net, definitely Google is reading. Let's suppose I have published one definite type of article. Definitely Google will know this article in that is on that page. Let's suppose if I took one article of any website and publish on the software, Google within 5 to 10 seconds they can tell you this particular content is from that website. That much fast is the Google. Okay, so Google work on the crawlers means they read each and every sentence whatever you have written. According to the sentence they made the algorithm, and on the base of algorithm the whole search engine work. Search ढूंढना, इंजन सर्च इंजन. ठीक है, सर्च इंजन आप समझ गए होंगे. तो डेफिनेटली गूगल सर्च इंजन एल्गोरिथम इज डिफरेंट, बिंग सर्च इंजन एल्गोरिथम इज डिफरेंट, इवन YouTube search algorithm is different. For each type of, I would say, search engine, the platform, the content, the algorithm is almost different, but more than 80% core is same. More than 80% core is same. ये बात आप ध्यान रखना. So whenever you are making your presence on Google, make sure Google is the world #1 search engine. So you should bond with the best. You should bond with the best. तो आज पहली चीज बताऊंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू शुड डू व्हेन यू मेक द गूगल माय बिजनेस पेज. हाउ मेनी ऑफ यू हैव गूगल माय बिजनेस पेज? जस्ट टाइप BB in the comment section. Just type BB in the comment section. Just type BB in the comment section. सबसे रिक्वेस्ट है, if you do not have, just type double N in the comment section. Just type double N in the comment section. जस्ट टाइप $N. सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए 41 लोग हैं, मजा आएगा आपके साथ इंटरेक्शन करने के लिए. यस, ठीक है. तो आज हम पहले देखते हैं, मेकिंग द गूगल पेज इज नॉट ए वेरी हेक्टिक टास्क, बट मैनेजिंग इट, ऑप्टिमाइजिंग इट, रैंकिंग इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट. तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेज बनाने के पीछे कैसे पेज बनाना है. Then I will go to the psychology of the particular. After then, in the next class, we will let you know how you can optimize, how to list your product, how you can promote that particular content. Okay, got it? Are you ready? अगर ready हो, just type me in the comment section. अगर ready हो, just type me in the comment section. मैं थोड़ा सा धीरे पढ़ाता हूँ, प्लीज माफ करना, ताकि आपको पढ़ने में भी मजा आए, करने भी मजा आए. एक स्टॉप. ओके, ये आप देखें गूगल में बिजनेस का. ठीक है, देखिए ये जो GMP पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सेल्स को जनरेट करने का. एंड व्हाट इज GMP पेज? जब आप सर्च करते हैं डॉक्टर्स नियर मी, लॉयर्स नियर मी, तो सबसे पहले पेज आपके पास कौन सा आता है? नियरेस्ट का. मीन्स मेक श्योर आपने कितना भी बड़ा पोर्टल बनाया हुआ हो, गूगल पहले देखता है कि कौन सा कंटेंट आपका सबसे पास है. कौन सा कंटेंट, समझिएगा, विच कंटेंट इज नियरेस्ट टू यू. ठीक है ना, कौन सा कंटेंट आपका सॉरी सबसे ज्यादा पास है, वो मैटर करता है आपके लिए कि आपका कंटेंट कैसे रैंक करेगा. तो पहला है, जितनी ज्यादा पास में आपका गूगल माय बिजनेस पेज होगा, जितना लोकेलिटी में, वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होगा. एक बात आप ध्यान रखिए. नेक्स्ट ध्यान रखना कि आपके पास जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो आपका एग्जैक्ट एड्रेस देख पाए, नंबर देख पाए, नाम देख पाए, प्रिसाइज लोकेशन देख पाए, वेबसाइट देख पाए. हाउ मेनी यू हैव
listed their website and phone number and timing on the particular portal, just type me in the comment section. Just type me in the comment section. Please write in the comment section. Just type me in the comment section. You know, लिख रखा है कि सत्या साहब मैंने लिख रखा है, कुछ लोगों को लिख रखा है. चलिए अब देखिए, जब आप लिस्टिंग करते हैं तो विजिटर्स आना इसमें चालू होते हैं, आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है. विजिबिलिटी आप प्लीज समझिएगा. लेट सपोज मैं आपसे चाहूंगा वॉलंटियर करे आप में से कोई भी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज. कोई भी अनम्यूट करे प्लीज अपने आप को. Yes, sir. यस, योर गुड नेम. Tanmeet. हाँ जी मैम. Tanmeet Kaur, ओके मैम, आप कहाँ से बोल रहे हैं मैम? Delhi. आपका गूगल मैप बिजनेस पेज किस टॉपिक का है? हाँ जी, जीएमबी पेज किस टॉपिक का है मैम आपका? किस टॉपिक का है? हाँ, और किस जगह का बिजनेस कोचिंग, है? किस जगह का है? न्यू दिल्ली. लेट सपोज जब आप जीएमपी पेज बनाते हैं, डायरेक्टली न्यू दिल्ली न लिखें. रीजन बताता हूं मैं आपको. जितना ज्यादा लोकलाइज होगा उतनी ज्यादा लीड आएगी. लेट सपोज मैं संत नगर में हूं, आप दिल्ली में हैं, ठीक है, तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव होगा बुराड़ी, संत नगर एंड नियरेस्ट एरिया. तो आपको शुरुआती 4 लोकेशन चूज करने हैं जो आपके 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में है, ताकि वो लोकल सर्च इंजन में आए. डायरेक्टली मैंने मुंबई रख दिया, डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू रैंक ऑन द पर्टिकुलर पेज. ये पहली बात आप ध्यान रखना है कि आपकी विजिबिलिटी तब बढ़ेगी जब लोकली आपको देखेंगे. ध्यान रखना, लोकली आपको देखेंगे. अक्सर लोग क्या करते हैं, जीएमपी पेज बनाते हैं, वो मुंबई डाल देते हैं, सोलापुर डाल देते हैं. नो, इफ यू आर इन द नोएडा, please stick to the sector 1, sector 2, sector 3, or you can have multiple sector जो nearest हो 4 से 5 किलोमीटर. Is it clear to all of you मैम? कितना क्लियर है मैम? ताकि आपके पास ऑडियंस इनिशियली आए, यू कैन गेट रिव्यूज एंड रेटिंग्स. होता क्या है, आप दिल्ली डाल देंगे, डेफिनेटली रिव्यूज और रेटिंग में आपको डिफिकल्टी आएगी. ध्यान रखना. सेकेंड, ओपनिंग और क्लोजिंग और से बहुत जरूरी है, और ध्यान रखना विद फोटोज एंड टेस्टिमोनियल्स. आपके पास हो सकता है बहुत सारे फोटोज हो, बट डू यू हैव टेस्टिमोनियल्स? Do you have Yes, testimonials? Yes, Yes. sir. How many testimonials you have? In my recommendation, you must have 7 testimonials. 7 testimonials होने चाहिए. 7 product videos. Yeah, I am having 7 testimonials, but should I have the 7 testimonials on my GMP page? Yes, you can have, man. There is no limit at all. 7 product video, and this product video will not show any I would say advertisement. It is only based on informative content. Let's suppose aap ma'am, what you sell ma'am, actually please let me know ma'am. So actually, I am into business coaching. I help small and medium enterprise to grow their business basically. जो एक level तक तो पहुंच जाते हैं. I don't help startups. I help business owners जो कुछ साल से काम कर रहे हैं but एक level पे रुक गए हैं. I help them grow their sales, profits, and run their business on autopilot mode. Okay, let's suppose you have made one video कि भाई आपने एस्केलेट कैसे करना है, स्टार्टअप्स को बढ़ाना कैसे है, क्या चीज करनी क्या चीज नहीं करनी. इट इज योर इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट. ओके सर, ओके मैम. आपके 6-7 इंफॉर्मेटिव प्रोडक्ट होंगे, डेफिनेटली इट विल गेन द ट्रस्ट. अगर इसके कंपैरिजन में आपने सीधे बोला कि मैंने इन लोगों को आपने प्लेसमेंट दी है, इन लोगों को आपने सर्विस दी है, डेफिनेटली तो डेट इज नॉट इम्पैक्टफुल. मैं एग्जाम्पल के साथ शेयर करना चाहता हूँ. आई एम ए करियर काउंसलर, आई एम ए ट्रेनर, एंड आई एम अ स्कूल ड्रॉप आउट. बट whenever I used to go to different schools and colleges, nobody entertained me कि भाई आप मेरी ट्रेनिंग कर लो. What I did, I collect the whole database of the Delhi by software. I started forwarding content, how to memorize well, what is scientific revision, how to heal well, how to do the speed reading without selling anything. What happened after seeing my video, they thought this person have the quality content. Now the quality content wins the trust. The winning the trust is most important, followed by the selling. So make sure 7 videos of your testimonials, 7 videos of your product will explain something, which give informative content to audience, and rest 7 video आपके होने चाहिए
जो आपके प्रोडक्ट के हों, प्रोडक्टिविटी हो, प्लीज मेक श्योर प्रोडक्ट एंड इट शुड बी विद इन 3 मिनट। किसी को लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं है। गॉट इट? कितना सबको क्लियर है? प्लीज अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी। पहले आपको ना सर साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, किस साइकोलॉजी से आपको अप्रोच करना है ताकि आप ऑडियंस को कैप्चर कर सकें, आप कस्टमर बेस बढ़ा सकें। ये पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर क्लियर है जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। ना अब ना होता है कि कम्युनिकेशन आपने क्लाइंटेल के साथ कर लिया, लोग रिव्यूज लिखते हैं, रेटिंग्स लिखते हैं, बट हाउ मेनी ऑफ यू रिप्लाई टू द रिव्यूज? रिव्यूज को आप रिप्लाई कितना करते हैं? एंड रिप्लाई विद थैंक्स और विद समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव कंटेंट। रिप्लाई करना किसी रिव्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि योर रिव्यूज एंड रेटिंग आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो टू वे कम्युनिकेशन इज द की इन द गूगल माई बिजनेस। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं सीधे जीएमबी पेज के क्रिएशन के ऊपर। इसके बाद और बारीकी को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए, लीजिए, ये हमारा जीएमबी पेज है और मैं इसमें, लीजिए, मैंने यू सर्च जीएमबी। जीएमबी के लिए कुछ नहीं करना, आपको डालना है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस में जाने के बाद ये आपको क्लिक जस्ट अ मिनट, मैनेज नाउ। कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैनेज नाउ सर, अभी क्लियर है सर? नहीं, आपकी सिर्फ इसकी विंडो दिख रही है। मैं दोबारा शेयर करता हूँ सर, ठीक है? प्लीज शिद्दत से पूछिएगा, अगर आप कहीं अटक रहे हैं प्लीज मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? आपको खोलना है गूगल माई बिजनेस। गूगल माई बिजनेस आप जब खोलोगे तो आपको ये पेज मिलेगा एंड हेयर यू हैव टू गो मैनेज नाउ। मैंने साइन इन ऑलरेडी कर रखा है, ये आपके पेज आ रहे हैं। ये मैं जीएमबी पेज बना रखे हैं बट दीज आर नॉट वेरीफाइड। मैं थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा करूं सर ताकि लोग देख पाए। Satya, Yes. it's visible. I think Visible. it is visible. नहीं, हो सकता है कुछ लोग फोन से जुड़े हों इसलिए, ठीक है? Quite हाँ, visible. अब आप देखिए ये है, अब ये वेरीफाइड होने को तैयार है बट मैं वेरीफाइड नहीं करना चाहता। आई विल ऐड वन बिजनेस। मैं ऐड बिजनेस करूंगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन दिस टॉक वेरी केयरफुल्ली एंड डिलिजेंटली, ठीक है? अब नाउ आई रिक्वेस्ट एनीवन प्लीज वॉलंटियर फ्रॉम योर साइड। आप इस पे वॉलंटियर करें प्लीज, मेल करें इस बार, ठीक है? यस सर, मनोज Yes. गोयल। मनोज गोयल जी नमस्कार, कहाँ से हैं सर? सर दिल्ली से। अरे सब दिल्ली वाले हैं। अच्छा बताइए, अपने बिजनेस का नाम बताइए सर आप। न्यूक्लियस बिजनेस सिस्टम्स, NUCLEUS, NUN नागपुर, NUCLEUS US सिस्टम्स। बिजनेस सिस्टम्स। ये आ गया सर, प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपीज। ये एक और बिजनेस है मेरा। ये आपका है, ठीक है ना? जी जी। ये आपने बना लिया। अब इसके बाद क्या करना है, ऐड कर दिया आपने। अब आपका बिजनेस नेम क्या होगा सर? एग्जैक्ट बताइए बिजनेस नेम। सर वही है, न्यूक्लियस बिजनेस सिस्टम्स। न्यूक्लियस, NUCLEUS। न्यूक्लियस स्पेलिंग ठीक है सर? नहीं सर, NUCLEUS, ए हट जाएगा। CLUE न्यूक्लियस बिजनेस, BUSINESS सिस्टम्स। सर ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, इसलिए दिखा रहा है वो। कोई बात नहीं। अब ना व्हाट इज द कैटेगरी? ये आएगा सर, IT हार्डवेयर, कंप्यूटर्स, IT हार्डवेयर। IT हार्डवेयर। देखिए ये तो अवेलेबल है नहीं, ठीक है ना? आप समझिएगा प्लीज, यही ट्रिक होती है। हार्डवेयर, आपने क्या करना है, यहाँ डालना है हार्डवेयर, ठीक है ना सर? ठीक है। अब ध्यान रखना, एक बार आपने लिस्टिंग कर दी, लिस्टिंग करने के बाद वेरीफाई होने के बाद यू कैन ऐड मल्टीपल टाइप ऑफ बिजनेस कैटेगरी, बट ऑल बिजनेस कैटेगरी शुड बी रिलेटेबल। ध्यान रखना। लेट सपोज मैं डांस करता हूँ,
ठीक है ना। तो डांस के अलावा भाई मैं लिखूंगा भाई मुजरा भी कर सकता हूँ, ठीक है, बेली डांस भी कर सकता हूँ, ठीक है, सोलो डांस भी कर सकता हूँ। ये आपके बिजनेस कैटेगरीज होते हैं, वो हो सकते हैं, बट बहुत सारे बिजनेस कैटेगरीज आपके डायरेक्टली लिस्टेड नहीं होते हैं, जो बाद में आपको ऐड करने पड़ते हैं। इनिशियली एक ही बिजनेस कैटेगरी ऐड होगा। अब इसके बाद जाइए नेक्स्ट में जाने के बाद क्या आप चाहते हैं कि आप अपना बिजनेस एड्रेस दिखाएं, आप ये भी कर सकते हैं कि यू कैन हाइड योर बिजनेस एड्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप हाइड करेंगे तो फायदा क्या होगा, nobody will able to see your business, but they can interact with you, they can buy products from you also। ये एक सबसे मैं कहूँ बड़ा एक प्लस पॉइंट है इसका। यस आपने कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद आपका एड्रेस पूछेगा। एड्रेस सर बताइए, मैं ये फिक्स नहीं होगा, मैं नॉर्मली डाल रहा हूँ सर, ठीक है ना। हाँ सर, बैंक लिए क्वेश्चन कर दीजिए, BHERA। सर मैं नॉर्मली डाल रहा हूँ, ठीक है सर। अच्छा, ठीक है, गली नंबर 32, दिल्ली 110084, सॉरी डाल दिया, सन, ठीक है, 110084 यहाँ डाल दिया, स्टेट। आप इस जगह की ट्रिक को आप ध्यान रखना प्लीज, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। मेरे एक आदत है, मैं हर 5 मिनट बाद पूछूंगा कि मैंने आपको क्या बताया, प्लीज आप रिपीट करके बताइएगा प्लीज, अगर आप एम्बैरेस ना हो तो आप, ठीक है। अब आप ऑफिस विजिट चाहते हैं। अब नाउ ये इंपॉर्टेंट एरिया देखिए, मैंने सिलेक्ट किया है संत नगर, प्लीज समझिएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब दिल्ली सर अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन देना चाहते हैं, यू कैन अवॉइड फिजिकल ऑफिस, बट इफ somebody want to physical office, secondly there is a question of credibility. Let's suppose I want to interact with someone, but if he do not have physical address, definitely I will be suspicious। तो इस चीज का थोड़ा सा आपने हर चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है सर। ओके, नाउ संत नगर है, तो संत नगर के नियरेस्ट एरिया क्या होगा, अंदाजा आप लगा लीजिए। इसके लिए सबसे बढ़िया आपको गूगल मैप खोलना है। मैं बहुत धीरे करा रहा हूं प्लीज, अगर मैं थोड़ा तेज जाऊं तो प्लीज मुझे बताना। मैप्स मैंने डाला, मैप्स, मैं गूगल मैप डाला, ठीक है, गूगल मैप मैंने डाला और ये है आपका गूगल मैप्स, ठीक है। ये मैंने गूगल मैप खोल लिया। अब आप देखिए, मैंने जो रीजन चुना है आपका, वो चुना है संत नगर। संत नगर बुराड़ी के पास है, दिस इज, ये आपका है संत नगर, जस्ट ए मिनट, ये है आपका संत नगर, देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब आपको चुनना है 5 किलोमीटर के आसपास के एरिया, ज्यादा नहीं। 5 किलोमीटर आपका यहाँ होगा, 5 किलोमीटर आपका यहाँ होगा, और 5 किलोमीटर आपका लगभग आपका यहाँ से ज्यादा नहीं, सॉरी, यहाँ आपका अपर साइड होगा। तो आपका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, रीजन आजादपुर, संतनगर, बुराड़ी, 3-4 एरिया आपके पास हो जाएंगे आसपास। अब आपने यहाँ डालना है, पहले डालना है संतनगर, जिसमें आप ऑपरेट कर रहे हैं, संतनगर नगर, ठीक है। सेकेंड बुराड़ी, बुराड़ी, अच्छा। नाउ इसके बाद आपने डाल दिया नियरेस्ट आजादपुर, आजादपुर, आजादपुर। सर सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब करना चाहूंगा सर। तो ये सर, हम किस में डाल रही हैं डायरेक्शन, जो अभी जैसे मेरा भी गूगल का पेज है, मेरा साची एंड देखिए एसोसिएट्स। ये आपको डालना है, एड द एरिया यू वांट टू सर्व ऑप्शनल। ये मैं मेरे वाले में खोलूं और कहाँ हाँ जाना पड़ेगा सर, हाँ जैसे मैं साथ साथ चल रहा हूँ वैसे चलते जाइए, क्रिएट प्रोफाइल में आएगा सर आपका। सर प्रोफाइल में नहीं आ रहा था। आप एक काम कीजिए, पहले प्रोसेस समझिए, मैं दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करें, ठीक है सर, ठीक, दोबारा समझाऊंगा। हाँ, तो हाँ। इसमें फायदा क्या होता है, अगर आप ऑप्शनल एरिया डाल रहे हैं, तो भाई अगर मैं एक लड्डू बेच रहा हूँ, ठीक है ना, मैं लड्डू बेच रहा हूँ आपके चांदनी चौक पे, पर अगर मैं कहूँ मैं यही लड्डू बेचता हूँ लाल किले के आसपास, डेफिनेटली पीपल विल कंसीडर, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपने और एक्स्ट्रा डालनी है जो थोड़ी सी ऑड हो, दैट यू कैन ऐड
GTB नगर, तो आउट ऑफ द बॉक्स हो, आप समझ रहे हो, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स हो ढूंढो ताकि आपका रेंज बढ़े, बट यू कैन चेंज दीज ऑल आइटम लेटर ऑल्सो, आप इन सब आइटम्स को लेटर चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कर दिया आपने। अब नेक्स्ट करने के बाद ये आपका मांगेगा कॉन्टैक्ट नंबर, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया। यूआरएल मांगेगा, प्लीज इफ यू डू नॉट हैव यूआरएल यू कैन स्किप, और अगर आप चाहते हैं फ्री वेबसाइट बनाए, ये मुफ्त की वेबसाइट आपके लिए बना के दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, चलिए हम मुफ्त की वेबसाइट बना के देंगे आपको गूगल साइट की। यू वोंट बिलीव पीपल चार्ज मोर देन 8,000 रुपीज फॉर मेकिंग गूगल साइट वेबसाइट। यहां तक क्लियर हो गया आप सबको, सभी लोगों को, ठीक है। अब आपको कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ेगा जिसके पास ये कोड आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने डाला सत्यावीर सिंह, ठीक है, ऐसा ही। मेक श्योर आपके पास एक मेल आएगा 12 दिन बाद जिसपे 5 डिजिट का कोड होगा, जब आप एंट्री करोगे तभी आपका वेरीफाई होगा, तभी आपका गूगल पे ये दिखेगा, ये बात आप ध्यान रखो। मोर ऑप्शन में कई बार ढंग से ऑप्शन काम नहीं करते, मेल भी कई बार काम नहीं करता, तो बेस्ट ऑप्शन इज, ठीक है, पोस्ट कार्ड बाय मेल भी करोगे तो आ सकता है, बट कई बार इसमें दिक्कत होती है, आप मेल डाल लीजिए, इफ आ जाए तो बढ़िया बात है, नहीं तो पोस्ट कार्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई शंका तो प्लीज मुझे बता दीजिए। हिंदी ऑडियंस, इंग्लिश ऑडियंस, एवरीथिंग इज क्लियर? यस सर। या पोस्ट कार्ड ऑप्शन चूज करने के बाद में अगर पोस्ट कार्ड आता नहीं है कोड का, तो उसमें हम फिर से चेंज कर सकते हैं उसका ऑप्शन मेल के लिए? आप चेंज कर सकते हैं मेल के लिए, रिवर्ट दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, किससे ऐसा आई कांट एबल टू गेट द पर्टिकुलर कंटेंट, डेफिनेटली दे विल रिप्लाई। ओके ओके, थैंक यू। नाउ यू हैव टू सेट द बिजनेस आवर्स, ठीक है ना। मैंने मंडे रखा, मंडे में I have a question, please. यस मैम, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। Yeah, I'm Sabha over here. I have just joined in. So have I just missed lot or not? नहीं, आप मिस नहीं किया, आप वेट कीजिए, मैं इसके बाद 10 मिनट में पूरा रिवाइज कराऊंगा, ठीक है मैम, थोड़ा वेट कीजिए बस, ठीक है। नाउ Thank you very much. ठीक है, आपने गूगल बिजनेस पेज बना दिया, नाउ यू हैव टू एंटर ओपनिंग आवर्स एंड क्लोजिंग आवर्स। आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कब आपको खोलना है, कब बंद करना है। एएम कर दिया, यहाँ आपने कर दिया, इवनिंग कर दिया, इट इज अप टू यू, जब आप चाहें तब क्लोज कर दीजिए, ओपन कर दीजिए, इट इज अप टू यू, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए, अब एक कस्टमाइज है, आप मैसेंजर एक्सेप्ट चाहते हैं मैसेज, यस, आपको चाहिए कि आपका कस्टमर कोई मैसेज करे तो आप मैसेज एक्सेप्ट कर लें, नेक्स्ट, ठीक है। अब आपको अपना बिजनेस डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। मेक श्योर इट इज नॉट ए इजी टास्क टू राइट ए डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश हमारी रिटन इंग्लिश, रिटन हिंदी माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त होती है, तो प्लीज मेक श्योर टेक योर टाइम एंड राइट। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे, मैं पीपल ट्रेनर की वेबसाइट से कंटेंट निकालता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ इस कंटेंट को कॉपी करता हूँ, प्लीज इट इज ऑल डमी, ठीक है ना, ये डमी चल रहा है, कोई परमानेंट नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये पीपल ट्रेनर की वेबसाइट है, हमने इसमें लिखा है अपने बारे में, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरा कॉपी लिया और इसको चिपका दिया इस पे, लीजिए, ये मैंने अगर इसमें और एक वेबसाइट ऐड करनी है अलग से, तो हाउ शुड वी ऐड इट? गूगल माय बिजनेस पेज पे अगर हम लोग को दूसरी अकाउंट में हम लोग को वेबसाइट बनानी है, तो हाउ शुड वी मेक दैट? आप वेबसाइट बना सकते हैं, यू कैन ऐड वेबसाइट लेटर, आप वेबसाइट लेटर में ऐड कर सकते हैं, देयर इज नो लिमिटेशन, यू कैन ऐड वेबसाइट लेटर। देयर इज मेनी पर्सन हु डू नॉट हैव वेबसाइट, जिसमें इनबिल्ट वेबसाइट का ऑप्शन देता है वो उनके लिए, बट यू कैन ऐड योर वेबसाइट इजीली एंड इफेक्टिवली, क्योंकि मैंने ये ऐड कर दिया, बट ये जो मैंने ऐड किया है, आई हैवंट ऐड एनी टाइप ऑफ कीवर्ड्स, प्लीज समझिएगा। जब मैं कोई कंटेंट लिख रहा हूँ, whenever I am making business and I am making business on apparel, definitely in my write-up, definitely something apparel should be mentioned. Why? Because Google is reading my each and every topic, ठीक है। अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा कि मैं अपैरल प्रोवाइड कराता हूँ, ये चीजें कराता हूँ, डेफिनेटली
will definitely they will consider me to rank the particular content. तो ये बहुत जरूरी है इन द डिस्क्रिप्शन राइट द स्पेसिफिक कीवर्ड, कीवर्ड्स अपना है। कीवर्ड सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यू हैव टू गो टू उबर सजेस्ट। उबर सजेस्ट में जाइए, अपने रेलेवेंट कीवर्ड चुनिए, आप अपने Satya, your voice is not there. सर आवाज नहीं आ रही। सत्या वॉइस नहीं है। मेरी वॉइस आ रही है सर? अभी आई है। अभी आई है भाई, अभी वॉइस आई है। रुको मैं थोड़ा, अभी मेरी वॉइस आई है? यस सत्या आ रही है। रुकना मैं थोड़ा सा ना इसमें कंप्यूटर का ना, हाँ रुक जाओ। Your voice is audible सत्या, अभी आ रही है। अभी ठीक है ना? ठीक है, एब्सोल्युटली अब राइट। देखिए अब कीवर्ड्स में क्या होता है। देखिए आपने डाला करियर काउंसलिंग, कीवर्ड्स आइडिया आपके पास कैसे आएंगे? करियर काउंसलिंग आपने डाल दिया, बट करियर काउंसलिंग के बारे में लिखना है तो हाउ विल गेट द कीवर्ड्स? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल उबर सजेस्ट पे। उबर सजेस्ट के अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म, बट इट इज द मोस्ट इजीएस्ट प्लेटफॉर्म। यहाँ आपने डाला और सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद आपके पास राइटअप आ जाएंगे बहुत सारे। इट विल टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेगा, प्लीज ध्यान रखना, डिपेंडिंग अपॉन द नेट स्पीड। और एक और है आंसर माय पब्लिक, आंसर द पब्लिक। ये देखिए आंसर माय पब्लिक में क्या है, आपके पास एक चार्ट मिल जाएगा। लेट सपोज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा टॉपिक बताएं मुझे आप, जिस टॉपिक आपका आपका वो होगा, मतलब स्टार्टअप होगा, कुछ भी होगा, बताइए टॉपिक बताइए प्लीज। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी लीजिए, मैंने सर्च कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, प्रॉपर्टी के पूरे प्रिपरेशन बता देगा। ये देखिए, ठीक है, हाउ टू सर्च द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैसी होती है, प्रॉपर्टी के स्टॉक्स कितने होते हैं, प्रॉपर्टी पेंशन कितने होते हैं, प्रॉपर्टी के शेयर्स कितने होते हैं, प्रॉपर्टी आसपास कैसे मिलेगी, प्रॉपर्टी सर्च कैसे करनी। मीन्स whenever you are writing the write up, मेरी शायद आपको विजिबल है ये, प्लीज बताइए। मैं इसको सेव करता हूँ इमेज। यस सत्य विजिबल। हाँ, तो ये एक ही आईपी एड्रेस पे एक ही बार काम करेगा, बट यू विल नो हाउ टू राइट द कंटेंट। ठीक है, कंटेंट आप लिख पाएंगे। ये देखिए मैंने इसको बड़ा कर दिया और बड़ा कर दिया, आप देख पाएंगे ये पूरा कंटेंट आप देख पा रहे हैं, जिसमें आप अपने हिसाब से राइटअप लिख सकते हैं। इज द आंसर माई पब्लिक.com। ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगा। इतना सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, मैंने नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद नाउ आई विल ऐड माय फोटोज। ठीक है, अब मैं अपनी कुछ अच्छी खासी फोटोज ऐड करूंगा। ठीक है, फोटोज कहाँ से ऐड करूँगा? कंप्यूटर से। अब मैं ये फोटो ऐड कर दिया मैंने ऊपर। ठीक है, फिर मैं एक और फोटो ऐड कर रहा हूँ। देखिए मैं रैंडमली ऐड कर रहा हूँ, प्लीज मुझे ये मत कहिएगा कि फोटो अच्छी नहीं है, जैसी तैसी है। मेरी घरवाली को बहुत पसंद है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ये देखिए 2 3, उसके बाद मैंने डाला इवेंट्स के फोटो। भाई इवेंट भी तो चाहिए ना मुझे, पुराने इवेंट है पर चलेगा, लेकिन लोग देखें भाई मैं कुछ कर रहा हूँ। लीजिए इवेंट का फोटो, एक और फोटो डालूंगा मैं भी। यहाँ मैं क्या, यहाँ जाने के बाद कुछ ये लीजिए, ये डिजिटल मार्केटिंग का फोटो, और मैंने इसका भी डाल दिया। ओपन लीजिए, डबल फोटो जा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं मेरे इतने सारे फोटोज आ गए। ठीक है, एंड दिस इज माय सोशल प्रूफ कि भाई मैं ऑनलाइन क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या रेपुटेशन है, लोग मुझे कैसे देख पा रहे हैं। ये मेरा एक ऑनलाइन रेपुटेशन हो गया, ये फोटोज हो गया। एंड दीज आर माई आई वुड से क्रेडेंशियल्स आल्सो। ये मैंने फोटोज डाल दिए।
फोटोज डालने के बाद फिर अब मुझे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ध्यान रखना, अब मेरा एक प्रोफाइल रेडी हो गया अच्छी तरीके से। अब मैं इसमें अपनी लिस्टिंग कर सकता हूँ प्रोडक्ट्स की। प्लीज समझिएगा, मैं लिस्टिंग अपनी प्रोडक्ट्स की कर सकता हूँ, पोस्ट डाल सकता हूँ, रिव्यूज डाल सकता हूँ, रेटिंग्स डाल सकता हूँ। अब ये मेरा होम पेज हो गया, देख पा रहे हैं आप, इधर होम पेज मेरा मेरा तैयार हो गया, ठीक है। और आपको 2000 रुपये फ्री मिलेंगे अगर आप ऐड डालोगे। पोस्ट आप अपने खुद डाल सकते हो। देखिए, मैं आप सबसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, इट इज नॉट easy to complete Google My Business in just 2 hours. At least it requires 3 hours. हमने 2 घंटे का वादा किया, but we are trying to deliver what we promised. हमने कोशिश की आपको ज्यादा दें। इंफॉर्मेटिव कंटेंट आप अपने बारे में डाल सकते हैं। इनसाइट आपको पता लगेगी जब आप अपने पे एक्टिवेट, आपका कंटेंट अलग अलग जाएगा, आपका रीच अलग अलग जाएगा। इंफॉर्मेशन में आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं पूरा का पूरा, क्या कंटेंट है आपका, क्या चीजें हैं आपकी। मैम अभी मेरी वॉइस आ रही है मैम? अभी वॉइस क्लियर है मैम? मैम मेरी वॉइस क्लियर है? सत्या वॉइस क्लियर है? वॉइस मैम क्लियर है सर वॉइस। मैं बड़े माइक से बोल रहा हूँ मैम, बिल्कुल आवाज क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल मक्खन की तरह। ओके, अब आप देखिए, आप यहाँ अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, ओपनिंग आवर्स, क्लोजिंग आवर्स, ठीक है ना। आप अपना एट्रीब्यूट डाल सकते हैं, हेल्थ सेफ्टी डाल सकते हैं, ऑफरिंग डाल सकते हैं, पेमेंट डिटेल डाल सकते हैं। यू कैन राइट एवरीथिंग अबाउट द टॉपिक, ओपनिंग डेट, इवन यू कैन ऐड द फोटोज ऑल्सो। यहाँ जाके आप अपनी फोटो भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे। प्रोफाइल फोटो, इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप थोड़ा सरपाओ मतलब नहीं, थोड़ा सा हाथों जब तक नहीं हिलाएंगे, डेफिनेटली देयर इज नो यूज। तब तक आप भाई साहब कुछ नहीं कर सकते। रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा थोड़ा समय लीजिए, थोड़ा थोड़ा, तक उस समय में आप अपना बढ़िया सा प्रोफाइल बनाएं, कंटेंट बनाएं। और आप यकीन नहीं करोगे, इसके बहुत बड़े बेनिफिट्स भी हैं, बहुत बड़े बेनिफिट्स हैं जो मैं आपको बात बताऊंगा। देखिए, मैंने आपके सामने इतने सारे अपने कंटेंट प्रोफाइल ऐड कर दिए। इनसाइट आपको नहीं मिलेगा जब तक आपके पास नहीं आएंगे, रिव्यूज आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक लोग लिखेंगे नहीं, मैसेज नहीं मिलेंगे। फोटोज आप तो देख सकते हैं, जितने फोटोज आपने डाले अलग 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 टाइप के देख सकते हैं, अलग अलग ऑफिस बना सकते हैं। तो ये अच्छा। अब रहा वेबसाइट। अब सिंपल सी बात है कि यार, या तो वेबसाइट के लिए डोमेन लो। अब मैं चाहूंगा आप ऐसे बताएं, व्हाट इज डोमेन नेम एंड व्हाट इज होस्टिंग? What is domain name and hosting? Please let me know in the chat section, or you can unmute yourself. सर डोमेन नेम तो हमारे साइट का एड्रेस हो जाता है। हाँ जी, और होस्टिंग है सर्वर स्पेस जहाँ पे वो साइट होस्ट होती है। बिल्कुल सही जवाब। डोमेन नेम क्या है? आपकी जब शादी हो चुकी है, और घरवाली क्या है? आपका होस्टिंग स्पेस पूरा का पूरा। सिंपल सिंपल एक, ठीक है ना, एक सिंपल एक बताऊंगा आपको, एक नॉर्मल बातों पे। डोमेन नेम, जब आप कोई ऑनलाइन चीजें खरीदते हैं, आपने वेबसाइट ली, दिस कॉल्ड डोमेन नेम। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, पर कितना माल आप उस पर स्टोर करोगे, दैट इज कॉल्ड होस्टिंग स्पेस। अब होस्टिंग और डोमेन दोनों लेने हैं तो इट इज ऑलमोस्ट कॉस्ट मोर देन 3500 रुपीज। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं कि 3500 से ज्यादा आपको लग जाएंगे अगर आप डोमेन भी लेंगे, होस्टिंग भी लेंगे? प्लीज लेट मी नो, प्लीज। आप सब लोग समझदार हैं, प्लीज बताएं प्लीज। आपको अगर खुद बनानी है, जस्ट टाइप स्टार्ट। स्टार्ट बनाओगे, ये अपने आप थीम चुन लेगा, कौन सी थीम आपको चाहिए, ठीक है। ये आपका थीम है, ठीक है, ये आपका कंटेंट है। और मैंने क्या किया, इसमें कुछ नहीं किया, मैंने व्यू साइट पे गया और लीजिए जनाब आपकी साइट तैयार, ठीक है। साइट आपकी तैयार है, फोटोज तैयार है, रिव्यूज तैयार है, टाइमिंग तैयार है। अब बताइए ये वेबसाइट कैसी लगी आपको? प्लीज बताएं। बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट, विद इन सेकेंड्स मैंने आपको बनाई है। इसी वेबसाइट के लोग 8000 रुपए, 4000 रुपए, 9000 रुपए लोगों से लेते हैं गूगल साइट्स के। इट डू नॉट रिक्वायर एनी डोमेन नेम एंड होस्टिंग, प्लीज। विदाउट डोमेन नेम आपने बनाए? यस, विदाउट डोमेन नेम एंड होस्टिंग। अच्छा, आप मुझे बताओ कितनों को मजा आया? अगर मजा आया, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन।
अगर किसी को जस्ट आप मी इन द कमेंट सेक्शन, सब मजा आ गया। कैसे करनी चाहिए हमको? लिंक कहाँ से कॉपी करनी? मैं लिंक जस्ट बता रहा हूँ। लिंक आपको यहाँ ऐसे करना है, यहाँ लिंक टॉप पे आ जाएगा, कॉपी करना है और लिंक को मैं आपको डालता हूँ आपकी, लीजिए जस्ट ए मिनट, ये लीजिए मैंने लिंक कॉपी कर दिया, आप कॉपी करके खोल लीजिए आराम से। ठीक है, ये प्रोसेस इजी है, बट बहुत चीजें इसमें बची हैं। क्या बची है इसे बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बचा है आपकी लिस्टिंग, आपको लिस्टिंग कैसे करनी है अपनी, ठीक है ना। लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक क्रिएशन कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो ऐड आप कैसे डालें इंपॉर्टेंट है। तो आज के सेशन में मैंने आपको बताया कैसे करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि ठीक गूगल में बिजनेस पेज बन गया, फायदा क्या है साहब, फायदा क्या है, ठीक है। अब मैं आप सबसे कहूंगा, आप में से कितने लोग हैं जिनका नाम मैं नेट में डालूं आप तुरंत प्रकट हो जाते हो? प्लीज, हाउ मेनी ऑफ यू आर विजिबल ऑन द नेट? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। यस, प्लीज अपना नाम बताएं मैम पूरा। प्रीति नवीन कुमार, ठीक है, नवीन कुमार, लीजिए नवीन कुमार जी मैंने डाला। सर बताइए कहाँ आप आ रहे हैं, बताइए आप कहीं दिख रहे हैं इसमें? हेलो सर, कहाँ कहाँ सर? सर किधर दिख रहे हैं बताइए सर, अनम्यूट करके बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं सर। श्रीराम वरगुप्त प्रसाद सर। हाँ जी सर, श्रीराम वरगुप्त प्रसाद फ्रॉम विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। विच लिंक, फर्स्ट लिंक, सेकंड लिंक, थर्ड लिंक मैम, किस लिंक पे हो सर आप? व्हाट्सएप सर। व्हाट्सएप सर, मतलब मैं बोल रहा हूँ शुरुआती 4 लिंक में आप हो सर? नहीं ना? नहीं। मैं किसी और से किसी, कोई और अपना नाम ले प्लीज। सर गुलाब। गुलाब, अरे वाह गुलाब, या पुष्पक डाल दीजिए सर, पुष्पक डाल दीजिए। गुलाब पुष्पक, खाली पुष्पक डाल दीजिए सर, पुष्पक रेफ्रिजरेशन। गुलाब सर मेरा नाम क्या लिखा सर? श्रीराम है, PUSHPAK। पुष्पक, PUSHPAK। PUSH पुष्पक रेफ्रिजरेशन। स्पेलिंग अभी भी नहीं आया है, ये नहीं आएगा, स्पेलिंग स्टिल रॉन्ग। ठीक है, लीजिए पुष्पक भी नहीं आया सर आपका। रेफ्रिजरेशन आ गया। मैनेजमेंटस कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, पुष्पक रेफ्रिजरेशन बोर्ड है वो। Those who want can put it in the chat box, so Satya can take it from there. आप लिख दीजिए, चैट बोर्ड पे लिखिए सर, ठीक है, चैट बोर्ड पे लिखिए, मैं लिखता जाऊंगा। सरकार स्पेलिंग टाइपिंग में मिस्टेक ना हो इसलिए। ठीक है चलिए। सत्या जी, विमल कुमार सरकार एक बार डालिए। मैं 2 मिनट सर, आप लिखते जाइए चैट सेक्शन में, मैं अपने आप लिखता जाऊंगा। सिर्फ जालवी देखिए, मैंने पहला डाल दिया चैट। ठीक है, टीम सम्राट सिंह वगैरह अगर देखिए, देखिए सबसे ध्यान रखना, जब आप GMB भी जाते हैं, आप में से हार्डली का किसी का कोई खास नेम है, खास फोटो है, कुछ भी नहीं है, मोस्टली कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपने रैंकिंग करनी है तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना नाम डालता हूँ, SATY सत्या बीर सिंह। मेरा पहला पेज पे आपको दिखाई देगा, दिस वन, देख पा रहे हैं आप सर? ये सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, थर्ड लिंक के बाद आप जब नीचे जाएंगे, फोर्थ लिंक, इसके बाद आप जाएंगे, नाउ आई एम रैंकिंग ऑन द इमेजेस ऑल्सो, इमेज में जाएंगे 1 2, ठीक है, 3 के साथ आप नीचे आप जाएंगे तो एक इमेज और मिल जाएगी मेरी शायद आपको। तो जब आपकी इमेज टॉप पे होगी, कंटेंट टॉप पे होगा, डेफिनेटली आपकी ब्रांडिंग बढ़ेगी। अगर मैं मार्गदर्शन गुरु डालूं, लुक एट दिस 1 2 3 4 5, आप देखो लिमिटेड बहुत सारी फोटोज हमारी आपको अवेलेबल होंगी लिंक के साथ। ये तो चलो यही है, अगर मैं लिंक क्लिक करूं तो मेरे पूरे लिंकिंग, पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी लिंकिंग मेरी ही है। तो मैं सब आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, और इसमें GMB की हेल्प मिलती है, तो GMB के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द जीएमबी, और जीएमबी के साथ विकिपीडिया पेज बना लिया ना तो सोने में सुहागा है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है जितना मैंने बताया है। जीएमबी पेज बनाने के लिए आप में से कोई भी है जो 5 मिनट में ये बताए कि मैंने आपको क्या बताया है, जस्ट टाइप मैं आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। बहुत कुछ बचाया बताने के लिए आपको, प्लीज आप में से कोई भी है 5 मिनट में रिवाइज करना चाहता है, प्लीज मुझे बताएं। ओनली 5 मिनट्स ओनली। ये जो साइट बनी थी वो मुझे इतना क्लियर नहीं हुई कि साइट कैसे बन गई थी। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको दोबारा प्रोसेस समझाऊं मैम, ठीक है? बहुत पर मैं फास्ट समझाऊंगा, डिटेल जाऊंगा ज्यादा नहीं, ठीक है मैम? सर एक क्वेश्चन था। यस सर। एक ईमेल, एक जीमेल आईडी से कितने गूगल माय बिजनेस आप मल्टीपल बिजनेस पेज बना सकते हैं, बट आई रेकमेंड ओनली मेक 4, क्योंकि मैनेजमेंट बहुत टफ रहता है और गूगल बहुत कीनली इसको वॉच करता है। ये बात ध्यान रखना। मल्टीपल बना सकते हो बट ओनली मेक 4 मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? चलिए मैं आगे अभी लिस्ट करता हूँ जीएमबी पेज का, एक और बनाता हूँ पेज में, ठीक है? सॉरी बहुत चीज बताने को है अभी, मैं दोबारा बता रहा हूँ। मैं यहाँ से दोबारा एक बना देता हूँ। सबसे बढ़िया गूगल में बिजनेस पेज, यहाँ मैं गया, प्लीज ध्यान से देखिएगा। यहाँ जाना है आपको, मैनेज नाउ में जाना है। मैनेज नाउ में जाने के बाद ऐड ए बिजनेस चूज करना है। ऐड में सिंगल बिजनेस चूज करना है और अपने बिजनेस का नाम डालना है। प्लीज अपना नाम बताएं, किस बिजनेस का नाम डालेंगे प्लीज आप में से कोई भी? लेडीज फर्स्ट। मैनेजमेंटर्स कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैनेजमेंट कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। मैम थोड़ा छोटा बताएंगे? ये मैंने ऑलरेडी बना लिया है। बनाने तो क्लैश हो सकता, कुछ और बताएं। अच्छा ठीक है, फिर आप कुछ और देखिए। मेरा कर दीजिए, मेरा नहीं बना हुआ। डिवाइन एजुकेशन। डिवाइन एजुकेशन लीजिए। यहाँ मैंने गया। आप कैटेगरी कौन सी यूज करोगी मैम? क्या कैटेगरी आपकी यूज होगी? दिस करियर काउंसलिंग, इट इज हीलिंग, क्या है मैम? ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ट्यूशन। देखिए एजुकेशन कंसल्टेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट लीजिए। करने के बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोकेशन चाहते हैं अपना कि नहीं, नेक्स्ट करना है। फिर आपको मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज अपना माइक आप म्यूट कर लें, ठीक है? इसके बाद आपने एड्रेस लिखना है। एड्रेस लिख दिया मैं, 420 गली दिल्ली, ठीक है? पिन कोड 110084 स्ट्रेट दिल्ली। मैं जल्दी कर रहा हूँ। नेक्स्ट आप बताएगा कौन सा लोकेशन है। नेक्स्ट मैंने कर दिया। नाउ लोग चाहते हैं फिजिकल ऑफिस मेरे आए, यस आए, इट इज अप टू यू। अगर आप नहीं चाहते तो नहीं भी कर सकते। यस कर दिया। अब आप I have a question. Yes ma'am, please ask question ma'am. No, sorry sir, I was asking this question only. Sorry. Okay, चलिए। Now आपने रीजन रखा है लेट सपोज कमला नगर। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट, इट इज ए टेस्ट फॉर ऑल पर्सन। लेट सपोज आई एम हैविंग वन सेंटर इन द बैंगलोर, व्हाट शुड बी द नियरेस्ट लोकेशन? प्लीज कमेंट। बैंगलोर से जो लोग हैं, कितने लोग साउथ इंडिया से हैं आज? सर हाँ प्लीज बैंगलोर के मुझे सेक्टर्स बताएं प्लीज मैम। बैंगलोर के सेक्टर्स? यस सेक्टर्स खास छोटी लोकेलिटीज बताएं मैम। कोरमंगला। ओल्ड मंगला। कोर KOR MAN मंगला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन आप लिखिए मान्यता टेक पार्क। टेक पार्क। हाँ टेक पार्क, मान्यता टेक पार्क। मान्यता टेक पार्क या मान्यता MANYETA मान्यता। मान्यता या YETA। सर इतना चल ठीक है, आप ऊपर आगे देखो, मान्यता टेक पार्क।
लीजिए ये आ गया। अच्छा या नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक सिटी आ गया। इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये लीजिए। ये आपको रखना है जो आपके नियरेस्ट एरिया हो, ठीक है ना, और नेक्स्ट कर दिया आपने, ठीक है। आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल सकते हो, आई डू नॉट हैव वेबसाइट, या कॉन्टैक्ट नंबर आपने डाल दिया। सब में मैं अपना ही डाल रहा हूँ, बाद में दिक्कत ना हो जाए। नाउ आई विल मेक द वन वेबसाइट, क्लिक, दोबारा वेबसाइट बना रहा हूँ, बट मेकिंग द वेबसाइट यू शुड हैव फोटोज, ठीक है। आपके पास फोटोज है, कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया मैंने, SATY सत्या, सॉरी सत्या, ठीक है, ठीक है। ये मैं मेल करूँगा बाद में, तब तक वेरीफाई होता रहेगा। कंटिन्यू। अब देख, नाउ किस दिन मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 2 3, आई विल चूज द टाइमिंग अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस। नेक्स्ट वन, सॉरी इसमें को क्लोज कर दूंगा, नहीं तो सबसे टाइम मांगेगा मुझसे। 24 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट जानने के बाद मुझे चाहिए, अब मैं चाहता हूँ अगर क्वेश्चन आंसर लोग पूछ सके मुझसे डेफिनेटली। अब डिस्क्रिप्शन लिखूंगा मैं अपना, मैंने वही पेस्ट कर दिया, जस्ट अ मिनट, डिस्क्रिप्शन जो मैंने लोकमान सर के यहाँ से लिखा था, ठीक है, छोटा लिखा था, मैंने यहाँ से डिस्क्रिप्शन लिखा, कॉपी किया, पेस्ट कर दिया सर के कंटेंट पे। यहाँ से कहाँ गया, माउस नहीं दिख रहा मेरे को, ये रहा सफ़ेद में, माउस काम नहीं कर रहा, ठीक है, और Control+C, सॉरी, माउस थोड़ा सा मेरा माउस काम नहीं कर रहा, जस्ट अ मिनट प्लीज वेट कीजिएगा। ये काम कर रहा है, यहाँ मैं क्या पेस्ट कर दिया, सॉरी पेस्ट नहीं हुआ, यहाँ गया सर का कंटेंट मैंने दिया, कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैंने पेस्ट कर दिया, लीजिए मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद आई विल ऐड माय फोटोज, ठीक है, फोटोज मैंने रैंडमली ऐड करनी, ठीक है ना, हमने क्लिक किया। अब मैं अपनी फोटो ऐड नहीं करूँगा, ठीक है, मैं रैंडमली फोटो ऐड करूँगा जो मुझे अच्छी लगेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लीजिए एक के बाद एक फोटो ऐड होती रहेगी। इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली सारा फोटो आपके पास अपलोड हो जाएगा इजीली एंड इफेक्टिवली। सर रिकॉर्ड बटन दबाया था सर आपने? यस सत्या, दबा दो। सर जेपीईजी इट विल फाइल टेक मिल सम जाएंगे? टाइम और सारा कंटेंट आपका अपलोड हो जाएगा। जेपीईजी फाइल्स हाउ मेनी जा सकते लोकेशन हैं यू कैन सर? ऐड? यू कैन ऐड मल्टीपल लोकेशन सर, 10 लोकेशन तक ऐड कर सकते हो। अगर आप लिमिटेशन बाद में आता तो यू कैन, आप होल्ड ऑन, आप रुक सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आपने जाना है नेक्स्ट जानने के बाद फिर आपको नेक्स्ट जाना है। अब इसके बाद पूछेगा, अब देखो ये आपका पूरा कंटेंट आ गया, आपने पेंडिंग रिक्वेस्ट है आपका, आपने पोस्ट, बहुत चीज़ें इसमें मैनेज करना है, बट यू कैन मैनेज नाउ। आप मैनेज नहीं कर सकते, आपको अपनी सर्विस ऐड करनी पड़ेगी। क्या सर्विस आप ऐड करना चाहते हो, किंडरगार्टन है, क्या है? नाउ हियर यू कैन ऐड द सर्विस। आप सर्विस ऐड कीजिए। यू कैन ऐड करियर काउंसलिंग, करियर गाइडेंस, मैंने बोला था ना करियर गाइडेंस, बट ये अप्रूवल लेगा, इट इज़ अप टू यू। आप यहाँ अपनी सर्विस ऐड कर सकते हैं जितनी आप चाहें, ठीक है। आपने ऐड कस्टम सर्विस भी कोई भी कर सकते हैं, अलग अलग सर्विस ऐड कर सकते हैं।
इट इज अप टू यू विच सर्विस यू वांट टू ऐड। सेव किया मैंने आपका, सेव करने के बाद ठीक है, वेबसाइट जो है तो वेबसाइट तो है नहीं। अब वेबसाइट बनाने कैसे देखा आप देख पा रहे हैं, मैं दोबारा बताता हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। मैं दोबारा वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। आई एम गोइंग टू मेक द वेबसाइट, जस्ट टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। अरे यस तो लिखिए प्लीज। देखिए आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 5 दिन से मैं बुखार में हूँ और कल ही मेरे पे 2 बोतल चढ़ी हैं, तब भी मैं आपके सामने बैठा हूँ और लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आपका मोरल सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ जाने के बाद आपको कौन सा थीम चूज करना है, ये थीम चूज करना है, ये थीम कौन सा थीम चूज करना है। मैंने ये थीम चूज किया, ठीक है, क्लिक कर दिया। अब इसके बाद आप देखिए टेस्टिमोनियल वगैरह। टेस्टिमोनियल तब आएंगे जब आप लिखवाएंगे टेस्टिमोनियल, और यहाँ जाके आपने कुछ नहीं करना, ठीक है ना, कुछ नहीं करना। यहाँ जाके आपने व्यू साइट पे जाना है। लीजिए भाई साहब, आपकी वेबसाइट तैयार, बढ़िया क्वालिटी की, अच्छे कंटेंट की, लोकेशन के साथ, सब कुछ ठीक है। और आपको कुछ खास नहीं करना, ये आपका GMB पेज तैयार हो गया। बट इट इज़ नॉट इनफ, it lacks lot of things, it lacks product, it lacks catalog, it lacks many things। बट पहले इतना तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ क्या चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अगर यहाँ तक सबको क्लियर है, जस्ट टाइप रेडी इन द कमेंट सेक्शन। जब तक सब लोग नहीं लिखेंगे तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं। जब तक सब लोग नहीं लिखेंगे कि सत्या मजा नहीं आया, तब तक पढ़ने का आगे का मजा नहीं। सर जैसे अभी आपने कहा कि थीम डिसाइड करने के लिए सिलेक्ट, हेलो सर, कैन यू हियर मी? आप लिखेंगे ना तो मुझे और बूस्ट मिलेगा। सर कैन यू हियर मी? यस मैम प्लीज बोले, सत्या इज नॉट एबल टू लिसन यू आई थिंक। अच्छा सर, मैंने थीम तो सिलेक्ट कर ली है, तो क्या मुझे उसके बाद प्लीज कंटिन्यू। हाँ, थीम मैंने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, बट उसके बाद मुझे पब्लिश डायरेक्टली कर देना है। सत्या ओके, थीम सेलेक्ट करने के बाद मैम you have to put the content inside the theme। थोड़ी सी मनहूस आएगी। theme is a template kind of thing, तो इतना आप wherein you have to customize डाउट it with your आपको content। लगभग ठीक है सर, ठीक है, सबको अच्छा। आप मल्टीपल लोकेशन पे गूगल माय बिजनेस पेज बना सकते हैं, बट ध्यान रखना मल्टीपल लोकेशन पे एग्जैक्ट एड्रेस एक हो, नाम एक हो, और यू कैन हैव मल्टीपल डिफरेंट लोकेशंस पे आप बना सकते हैं एक, ताकि आपकी पैन इंडिया प्रेजेंस दे। देखिए लेट सपोज मैं दिल्ली में हूँ पर मैं मुंबई में नहीं हूँ, पर मेरा साला मुंबई में रहता है, तो मैं वहां बना सकता हूँ। तो जब गूगल पे कोई सर्च करता है मार्गदर्शन गुरु, तो जो मार्गदर्शन गुरु आपका आगरा में है वो पहले आएगा, न कि मैं पहले आऊंगा। ध्यान रखना, जो मार्गदर्शन गुरु पहले है वो पहले आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी लिस्टिंग जितनी लोकल होगी, प्लीज लिस्टिंग आपका जितना लोकल होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, उतना ज्यादा आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा गूगल पे। सो लिस्टिंग शुड बी लोकल, एज मच लोकल। और जरूरी नहीं है कि लेट्स सपोज मैंने कोई कंटेंट बनाया और कंटेंट बनाने के बाद अपना कंटेंट बना दिया, बट मेरा कंटेंट का तभी वैल्यू होगा जब मैं उसको लोकली दिखूंगा। अगर लेट्स सपोज मैंने कंटेंट बनाया, इफ आई एम लोकेटेड इन दिल्ली, डेफिनेटली Margdarshan Guru Delhi will be on the top, and same person Margdarshan Guru is in Bangalore, definitely he will be on the top, because search engine makes very important algorithm. He ranks the person which is nearest to them, whether he or she have same name. Is it clear to all of you? समझ रहे आप? समझ गए? No, you cannot have 50 DD location। वहां आपको दिक्कत हो सकता है। एटलीस्ट स्टार्ट विद द 50 आप करें, उसके बाद आप आगे एक्सपेंड करें। दैट इज माय रिकमेंडेशन। करने को 50 कर सकते हैं, बट मैनेजिंग 50 इट इज नॉट ए इजी टास्क। वेरिफिकेशन में टाइम लगता है, एंड दैट कैन बी यू कैन बी पेनलाइज्ड आल्सो। ठीक है, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है अच्छी तरीके से? ठीक है, मजा आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? क्लियर है सर। अब आगे हम चलते हैं, कुछ टॉपिक जो हमारे रह गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
गूगल माई बिजनेस के हिसाब से, ठीक है ना? पेमेंट दीजिए, जस्ट मिनट। सर इधर कस्टम फाइल्स ही अपलोड हो रहे हैं सर। हाँ जी, हाँ जी। कस्टम फाइल्स ही अपलोड हो रहे हैं, जेपीजी पीएनजी फाइल्स तो नहीं हो रहे अपलोड। समझा नहीं। यहाँ पर आपने कहा था वेबसाइट पे इमेजेस अपलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पर फाइल्स, ऑल फाइल्स अपलोड। इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियो का ऑप्शन होता है, बट वीडियो का ऑप्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर आप क्या तैयार करें। नहीं, मैं कह रही हूँ कि अपलोड इमेज अपलोड नहीं हो रही है। इमेज अपलोड होगी, जैसे मैंने आपके सामने अपलोड की ना, आपके सामने अपलोड की। आप एक काम कीजिए, घर पे एक बार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली अपलोड होगी। नहीं है तो हम आप कल आपके सामने, कल आपका फ्री रहेगा, परसों आपकी क्लास रहेगी। ओके सर। ठीक है, तो ओके। आपके हम रेडी हैं आपके लिए बताने के लिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है, 2 मिनट दीजिए सर, मेरा थोड़ा सिस्टम डाउन है, मैं दोबारा रिकनेक्ट होता हूँ सर, प्लीज तब तक थोड़ा संभालिएगा सर, प्लीज सर। Okay, Satya. Thank you. Yes. So now, in case you have any question, you can ask till Satya connects with us once again. Sir, I have one question. Yes, please. सर एक्चुअली ना मैंने ये सब प्रोसेस कर लिया है, उसके बाद में जो फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए वो कोड भेजते हैं ना गूगल वाले बाय पोस्ट, वो भी मुझे मिला है। तो जब वो हम अपलोड करते हैं तो वो अपलोड के टाइम पे वो हो ही नहीं रहा है, मींस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वही कोड। जनरली इट डजंट हैपन। आपने वापस जो कोड मंगवाया था उसके बाद अगर कुछ अपडेट किया है तो वो उसका कोड चेंज हो जाएगा और वो वापस एक कोड भेजेगा। ओके ओके, हाँ मैंने अपडेट तो किया था सर, बराबर है। मैंने यस, तो वापस जो अपडेट किया अब दोबारा उसका कोड आएगा, वो एक्सेप्ट करेगा वो। ओके, तो फिर अभी नेक्स्ट और अप्रूवल के लिए लेना पड़ेगा क्या उसको? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट प्लीज। सर आपका कांटेक्ट नंबर चाहिए। जस्ट अ मिनट, आपको चैट बॉक्स में कांटेक्ट नंबर मिलेगा सर। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। दैट इज या सर कितने बना सकते हैं ये गूगल बिजनेस वाला पेज? गूगल बिजनेस पेज आप कितने भी बना सकते हैं, देयर इज नो लिमिट, but as soon as Google come to know that one person with the similar identities have created more than Google My Business pages, and if could identified by their algorithm, then they suspend the account over there. वो एक से ज्यादा अकाउंट को अगर कहीं सिमिलरिटी मिल जाए तो सस्पेंड कर देते हैं। सो आई एम गोइंग टू शो यू, जस्ट अ मिनट। वो आपको दिक्कत हो सकती है इसके पीछे। Yes, absolutely. सर स्क्रीन शेयर किया आपने सर क्या? Just a minute, Satya. I just wanted to know how it can be suspended. Shall I continue, sir? Yes, please, Satya. सर सब मिल जाएगा, वेट कीजिए सर। बस तीन चार चीजें आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट रखनी है। देखिए, कम्युनिकेशन विद द ऑडियंस इज द की। अगर आप ऑडियंस से कम्युनिकेशन नहीं रखोगे, डेफिनेटली आप चल नहीं पाओगे। अगर मैं पूछूं कोई होटल है जिसकी 3.5 रेटिंग है, विल यू गो और नॉट? जस्ट टाइप यस और इन द कमेंट सेक्शन। 3.5 रेटिंग है, विल यू कंसीडर टू गो और नॉट? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। नो सर। नो। ओके, भले उसकी सर्विस कितनी भी अच्छी हो, पर कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। ध्यान रखना, आज के टाइम में ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसके बिना आप कोई भी ब्रांड को आप आगे बढ़ा नहीं सकते, ना आगे ले जा सकते हैं। ध्यान रखना। अब इसके बाद आपके पास आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कस्टमर। आपका इंसाइट क्या है, प्लीज समझिएगा। आपके पास कस्टमर आता है, उसके पास अपने कुछ विजन्स होते हैं, अपने कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उसकी कुछ एनालिसिस होती है। यू शुड हैव ए प्रॉपर फीडबैक मैकेनिज्म। एक चार्ट होना चाहिए आपके पास कि सर आप हमारी दुकान से जा रहे हैं, प्लीज फिल द फीडबैक फॉर्म। हाउ मेनी ऑफ यू डू इट? जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। आप समझिएगा, आपका कस्टमर, आप कुछ भी अच्छा बेचो, डजंट मैटर, बट कस्टमर ही बताएगा क्या आप सही कर रहे हो, क्या आप गलत कर रहे हो। प्लीज एक फीडबैक फॉर्म आप रखिए, क्या उसको अच्छी लगी, क्या उसको अच्छी नहीं लगी, और इन फॉर्म ऑफ गूगल माई बिजनेस पेज।
GMB में वो बस टिक 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 करेगा और रेट कर देगा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा भी आप कहाँ स्टैंड करने हैं। क्योंकि कस्टमर का जो आपका जो बेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। देन फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द ट्रैफिक, लेट सपोज आप GMB बना दिया, और फ्रॉम GMB फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग द ट्रैफिक, are you getting the traffic from website, are you getting the traffic from WhatsApp, etc. So tracking the website content from where you are getting the traffic on the Google My Business page, it is the most critical part. ये आपको पता लगेगा जब आप पेज बना लेंगे, ठीक है। नाउ इजीली मैनेजिंग रिव्यू, ध्यान रखना ये जो रिव्यू मैनेजमेंट है ना, ये सबसे टफ मैनेजमेंट है। आई वुड से इट इज द टफेस्ट पार्ट इन द इंडस्ट्री। टफेस्ट पार्ट क्यों? क्योंकि रिव्यू लोग ईमानदारी से देते नहीं है, और जो लोग देते हैं कई बार हम उनकी इंपॉर्टेंस लेते नहीं है। तो रिव्यू लिखवाने का एक साइंटिफिक तरीका होता है, बहुत ही जबरदस्त। अच्छा, कितने लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि साहब रिव्यू तो लिखवाना है पास साइंटिफिक, तो जस्ट टाइप SCI इन द कमेंट सेक्शन कि साइंटिफिक तरीका क्या हो सकता है जहां आपको मलाई भी मिल जाए और आपको तारीफ भी मिल जाए। सबसे रिक्वेस्ट है, देखिए आप ऐसा लगे मतलब इंटरेक्शन हो तो मजा आए। देखिए ये बहुत जरूरी है कि गूगल में जब भी कोई लिखता है उसका एक एल्गोरिथम बनता है। उसका एल्गोरिथम कैसे बनता है आप समझिएगा। एल्गोरिथम ऐसे बन जाएगा कि आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप कब कंपटीशन से आउट हो गए। होटल रीजेंट ग्रैंड, लुक एट दिस, ये होटल है, इस होटल मैंने बहुत वर्कशॉप किए हैं, बट देयर रिव्यूज आर पैथेटिक। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि उन्होंने रिव्यूज पे ध्यान ही नहीं दिया। 3.9 है, मुझे पता है कोई नहीं जाएगा, बट होटल बहुत अच्छा है। अब आप देखिए, ध्यान से आप देखिएगा। तो स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा सर, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही, प्लीज बताइए 10 मिनट मैं आपको मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, ठीक है। ये देखिए, ये स्क्रीन दिखा आपको सर अभी? यस अब आप देखिए रिव्यूज में सर्विस कितना है 72%, लोकेशन 87%, बिजनेस 64, प्रॉपर्टी इतना, फूड 72 बहुत बेकार है, एटलीस्ट इट शुड बी 90, क्लीनिनेस बहुत कम है, ब्रेकफास्ट बहुत कम है, पार्किंग में तो बिल्कुल अनफेवरेबल है। तो ये क्यों आए हैं? ये इसलिए आए हैं, लोगों ने रिव्यूज लिखे, इन रिव्यूज का ऑटोमेटिक की जनरेट हुआ है। मैं जितनी बार आप रिव्यूज लिखते हो उस रिव्यूज का ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम कैच करता है। रिव्यूज लोगों ने लिखे होंगे, किसी ने होटल के बारे में लिखा होगा, किसी ने सर्विस बॉय के बारे में लिखा होगा, किसी ने स्टाफ के बारे में लिखा होगा, किसी ने रूम सर्विस के बारे में लिखा होगा, किसी ने लोकेलिटी के बारे में देखिए लोकेशन लिखा है। अब लोकेशन का सीधे डायरेक्ट आपका यहाँ आ गया लोकेशन किस हिसाब से। 8 मोर पे जाओगे आपको लोकेशन भी दिख जाएगा अच्छी तरीके से। फिर एयर कंडीशन के बारे में लिखा है। तो मीन्स आप जो रिव्यू लिखवा रहे हो वो रिव्यू डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है। अब देखिए, मैं एक अपना चैनल खोलता हूँ, मार्गदर्शन गुरु। प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, कोई भड़ास जाके न निकालना, कोई रिव्यू गलत मत लिखना, मैं बस दिखा रहा हूँ मैं आपको रिव्यू। अब आप देखिए मेरे रिव्यूज हैं, ट्रेनिंग कोर्स एक्सपीरियंस टीम। अब नाउ यू कैन सी ऑल द रिव्यूज विच रिटन वेल। लोगों ने बहुत ही शिद्दत से लिखा रिव्यू ताकि मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे। तो आपके रिव्यूज, आपकी रेटिंग है, आई हैव 4.7 रिव्यूज। एक ही रिव्यू कम था, नहीं तो इट विल बी 4.9। अब रिव्यू लिखवाने कैसे हैं, किस तरीके से उसको इनडायरेक्टली परसुएट करना है, कैसे करना है, उसकी प्रॉपर साइंस है। प्लीज साइंस को समझिएगा, देन यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। लेसन थोड़ा लंबा हो रहा है, माफी चाहूंगा, मैं इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लूंगा। जस्ट मिनट, एक और पीपीटी है वो, माफ करना, जस्ट मिनट। हाँ, नहीं प्लीज थोड़ा सा वेट करें बस, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ बस, कौन सी पीपीटी को लेकर कंफ्यूज हूँ बस। ये रही पीपीटी, गूगल का ऑप्टिमाइजेशन बहुत जरूरी है। ऑप्टिमाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका आता है
रिव्यूज एंड रेटिंग। अब ध्यान रखना, जो भी आपका लोकल एसईओ है वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट किसको देगा, गूगल को। तो लिस्ट ऑन द गूगल। अब देखना, इतनी साइट्स लोकल सर्च पे आती हैं जो आप देख पा रहे हो, इतनी सारी जो लोकली लिस्टिंग में आपका काम आती है। रीड द कंटेंट, या कंटेंट आपको मिल जाएगा, आप तसल्ली से देख सकते हो। इसके अलावा रिव्यूज आपको लिखने कैसे करने हैं, तो रिव्यूज लिखने के लिए सबसे पहले आपसे एक आपका एक छोटा सा मैं एक टेस्ट लेना चाहूंगा। सब लोग रेडी हो जाओ। हाउ मेनी ऑफ यू रेडी? जस्ट टाइप आर इन द कमेंट सेक्शन की सत्या ठीक हम रेडी हो गए। जस्ट टाइप आर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है सत्या रेडी हो गए। ठीक है, जस्ट टाइप आर इन द कमेंट सेक्शन। यस। अब देखिए, ये आपका बिजनेस है और बिजनेस में आपके सबसे इंपॉर्टेंट है रिव्यू। रिव्यू लिखने के लिए ध्यान रखना, आपका बिजनेस नेम, एड्रेस, प्राइमरी, ये चीज तो पक्का होनी ही चाहिए। अगर ये चीज नहीं होगी तो डेफिनेटली पीपल विल नॉट कॉन्टैक्ट यू, विल नॉट गिव वैल्यू टू यू। ये बहुत जरूरी कि आपके पास ये चीजें होनी चाहिए एग्जैक्ट। नाउ अब सबसे बड़ा खेल आता है कि रिव्यूज लिखने कैसे हैं, प्लस आपकी बिजनेस डिटेल्स कैसी है। लोग नॉर्मली बिजनेस डिटेल बहुत नॉर्मल लिखते हैं, नहीं, business details should be very professional and it should have it some video content also। अगर आप डाल सके तो सोने में सुहागा आ जाएगा। अब देखिए, रिव्यू रेटिंग के लिए मैं बहुत ही बेसिक चीज पे आ रहा हूँ, रिव्यूज। अब अच्छा, सब लोग एक्सरसाइज के लिए तैयार हैं? सभी लोग ठीक है? एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा आपके बिजनेस के लिए सब प्लीज सब पेन कॉपी ले लें प्लीज, तभी मजा आएगा करने का। सब पेन कॉपी ले लें। ठीक है, अब मैं एक टीचर हूँ, ट्रेनर हूँ, मैं एक ट्रेनर हूँ, ट्रेनर। तो ट्रेनर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या कीवर्ड होगा? फर्स्ट, इट इज द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। सॉरी, मैं इसमें थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, तो इसमें क्वालिटी of training. Second, hand holding, ये दो इंपॉर्टेंट है। देन सब्जेक्ट नॉलेज, सॉरी गलत टाइप कहीं होता है, सब्जेक्ट नॉलेज। देन इसके बाद क्या आता है? क्वालिटी, हैंड होल्डिंग, प्राइस। ठीक है ना, ठीक है ना, अफोर्डेबल प्राइस, प्राइस। ठीक है ना। देन इसके बाद आपका क्या है? हैंड होल्डिंग तो है, इसके बाद क्या है? बैक एंड सपोर्ट, बैक एंड सपोर्ट, ये आपकी 5 क्वालिटी है ट्रेनर की। अगर मैं गलत ना हूं तो प्लीज मुझे माफ करना। आई ट्राइड माई बेस्ट ताकि मैं 5 क्वालिटी बता सकूं अपनी कस्टमर को। अब करना क्या है, जब मैं जाऊंगा अपने कस्टमर के पास कि भाई ये हमारी 5 क्वालिटी तन्ने लिखनी है, ठीक है ना, प्लीज स्पेलिंग, आप 5 क्वालिटी लिखनी है बैकएंड, तो आप अपनी 5 क्वालिटी लिखिए। करना क्या है, आप लिख सकते हो जब आप मेंशन करेंगे, प्लीज यहाँ आपने लिखना है फर्स्ट लाइन, सर प्लीज मेंशन अबाउट माय क्वालिटी, डू आई ऑफर गुड क्वालिटी ऑफ हैंड होल्डिंग सर्विस, ओके। सेकेंडली, do I have subject knowledge, do you think my rates are affordable, and can I offer good quality backend support। आपने इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम करना है। डू नॉट कंपेल देम टू राइट, बट गिव देम द फीडबैक। ये फीडबैक आपको देना है। तो आप सब लिखिए 1 2 3 4 5 5 अपनी क्वालिटीज लिखिए
जो आप अपने कस्टमर को देंगे इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस, प्लीज राइट इट डाउन। ये आपके पास अभी असाइनमेंट है, राइट कीजिए। 4 क्वालिटी लिखनी है, इस तरीके से लिखनी है वो कंपल भी ना हो और लिख के भी जाए, एंड हैव समथिंग स्पेशल। कुछ सर आप लिखेंगे आई विल गिव यू 5% ऑफ, अगर आप कुछ करेंगे आई विल गिव 10% ऑफ, अगर आप एक करेंगे तो मैं कुछ चीज आपको एक्स्ट्रा दूंगा, क्योंकि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, लोगों को मुफ्त बहुत पसंद है, और अगर अप्रिशिएट करोगे डेफिनेटली दे विल लाइक इट। प्लीज राइट डाउन ऑल द ऑडियंस ताकि आपके कीवर्ड जनरेट हो सके, नहीं तो कीवर्ड जनरेट नहीं होंगे। 4 पॉइंट लें, 4 सेंटेंस बनाएं, राइट डाउन नाउ प्लीज, इट इज ए क्लास वर्क नाउ। सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज। और जो ये सबसे पहले लिखेगा आई हैव ए फ्री गिफ्ट, उसके लिए मेरे पास एक फ्री गिफ्ट है, बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट है, बहुत ही जबरदस्त गिफ्ट है, प्लीज ध्यान रखना जो सबसे पहले लिखेगा। आपके सामने है, प्लीज आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैंने इसको उठा के चैट में डाल दिया है आप सबको, चैट में आप कॉपी कीजिए और मैं यहाँ से टाइप कर दूंगा ताकि आप बार बार देख ना पाए। लीजिए अब लिखिए, मेक द सेंटेंस, सेंटेंस लिखिए। आप सेंटेंस लिखेंगे तो मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा, आपको भी ज्यादा मजा आएगा। प्लीज लिखिए, टेक 2 मिनट टाइम, 2 मिनट का टाइम लिखिए प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट से लिखिएगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि बहुत चीजें इसमें बताऊंगा मैं आपको। सत्या जी, आप लोगों की बात सुन नहीं आ रही है, आप लोग है? यस सर, आपके सामने है सर। नहीं है, लेकिन आप कुछ बता रहे हैं या एडजस्ट कर रहे हैं? सर
हम तो आपके सामने हम देख रहे हैं क्या कैसे लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छा लिख रहे हैं, बट क्या रिक्वायरमेंट की जरूरत है मैं एक एक करके बताऊंगा। ध्यान रखना जब भी आप लिखते हैं कस्टमर के लिए स्पेशली, मैं मनोज गोयल जी शुरुआत करना चाहूंगा। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड, नहीं ये आपने डायरेक्टली नहीं लिखना कस्टमर को। सर डू यू थिंक द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज वेरी गुड, प्लीज राइट योर कमेंट। सब्जेक्ट नॉलेज इज आउटस्टैंडिंग, ठीक है ना, क्या आपको लगता है मेरी सब्जेक्ट में आपको ऐसे फ्रेम करना है जैसे डू यू थिंक वी ऑफर गुड क्वालिटी एजुकेशन एंड विद राइट सब्जेक्ट नॉलेज and are my prices are affordable, please write in the comment section। आप लिख दीजिए, इतना कर दीजिए, आप रेडीमेड दे सकते हैं उनको। सेकेंडली आप देखिए बहुत अच्छा लिखा है किसी ने, नीचे ये देखिए, ये पटेल जी ने मार्गदर्शन ट्रेनिंग, सर ये तो मेरे बारे में लिखा है, चलो बढ़िया बात है, बट यस डू वी गिव क्वालिटी प्रोडक्ट एट कंपनी। देखिए आप ना किसी और से नहीं पूछते, आप बता रहे हैं सर are we are providing good quality of product, please write in the comment section and are they are competitive price। इसमें आपको स्पेस देना है, competitive price होगा तो वो स्पेस देगा। ओके, डू यू लाइक टू विजिट अवर वेबसाइट, जस्ट राइट इन द कमेंट सेक्शन yes or no, ठीक है। एंड डू यू लाइक अवर आफ्टर से सर्विस, आप fill in the blanks, तो you should have fill in the blanks and question, ताकि वो जो पार्टिसिपेंट है वो खुद बढ़े, वो कंपेल ना हो। अगर वो कंपेल हो रहा है तो डेफिनेटली ही इज नॉट राइटिंग एट हर ओन विल। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को अगर है तो प्लीज बताइए। इसी तरीके से आप कीवर्ड्स कर सकते हैं, वही जो कीवर्ड, आप ध्यान रखना कीवर्ड जो आपके लिए स्पेसिफिक हो। सर पांडे जी प्लीज आप बताइए, समझ नहीं आया मुझे, प्लीज सर बताइए क्या आपका क्वेश्चन क्या है सर? पांडे जी मुझे आपका सवाल। नहीं सर, मतलब मेरा ये कहना था कि नहीं सब कुछ समझ में आ गया, सो देयर इज नो डाउट सर। नो डाउट सर, चलिए नो डाउट मतलब मेरे लिए हेडेक खत्म। अब देखिए मैं आपके सामने एक चीज और बताना चाहता हूँ, ये जो कीवर्ड है यही आपके रैंकिंग में हेल्प करेंगे, ये आपकी ब्रांडिंग में हेल्प करेंगे। अब मेरा माइक ठीक हो गया है, बहुत दिन से आवाज अच्छी नहीं आ रही थी, कंटेंट अच्छा नहीं था, ठीक है, अब मैं थोड़ा सा अच्छा लग रहा हूँ, ठीक है। ओके चलिए, अब आप एक चीज का खास ध्यान रखिएगा कि आपके कीवर्ड्स हो गए, आपके रेटिंग्स हो गए। रेटिंग्स एंड रिव्यूज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको समझना है। रेटिंग्स के बाद पक्का रिप्लाई देना है, अप्रिशिएट करना है। इफ यू आर गेटिंग लो क्वालिटी रेटिंग, डेफिनेटली यू हैव टू अप्रोच दैट पर्सन कि भाई आपने जो रेटिंग मुझे कम दी है उसका कारण क्या है, क्या खास कारण है, कहाँ मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, कहाँ मैं चेंज कर सकता हूँ। ध्यान रखना, इस तरीके से आप अपनी अच्छी क्वालिटी की रेटिंग बना सकते हैं। सेकेंडली, गूगल माय बिजनेस पेज पर रैंकिंग इट इज ए टोटली डिफरेंट गेम। आप चाहें तो गूगल पेज पर रैंकिंग कर सकते हैं, बट रैंकिंग के लिए ध्यान रखना, क्रिकेट खेलना है तो बल्ला चाहिए, बिना बल्ला के क्रिकेट खेल सकते हो नहीं खेल सकते। शादी करनी है, शादी के दुल्हन लेके आने पड़ेगी आपको, तभी आप शादी के आनंद ले पाओगे। इसीलिए अगर आपको गूगल माय बिजनेस पेज बनाया ही नहीं है तो मैं आपको रेटिंग के बारे में नहीं बता पाऊंगा, कैसे एस्केलेट करना है नहीं बता पाऊंगा, आपको लिस्टिंग कैसे करना है नहीं बता पाऊंगा, ये कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। तो आप में से कितने लोग आज प्रॉमिस करते हैं कि सत्या ठीक है, हम जो आपने बताया है हम उसको वर्कआउट करेंगे, एक दिन बाद दोबारा मिलेंगे ताकि शिद्दत से आपको बता पाएं क्या हमें दिक्कत आई है, क्या हमें कमी आई है, क्या हमें समस्याएं आई हैं, ठीक है। आप सब लोग प्रॉमिस करते हो, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। और आपको एक जबरदस्त चीज और बताने वाला हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि शायद आप यहाँ से बहुत कुछ लेके जाएंगे और समझ के जाएंगे, ठीक है। जस्ट ए मिनट में, थोड़ा सा मुझे टाइम दे आप, ठीक है, उस सेक्शन में जाके। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार मार्गदर्शन से जुड़े हैं? पहली बार, फर्स्ट टाइम जो लोग मार्गदर्शन जुड़े हैं, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। बहुत अच्छा, देखिए मैं अपना नाम बताता हूँ, मेरा नाम सत्या है और मेरे साथ मिस्टर लोकपाल सर काम कर रहे हैं और पिछले कई सालों से मैं डिजिटल मार्केटिंग में हूँ। बीइंग ए स्कूल ड्रॉपआउट, आई लव टीचिंग, आई कैन टीच मैथमेटिक्स, आई कैन टीच साइकोलॉजी, आई कैन टीच इकोनॉमिक्स,
आप सब्जेक्ट का नाम लो, मैथ्स को छोड़ के मैं पढ़ के सब समझा सकता हूँ। बट आई लाइक डिजिटल मार्केटिंग नॉट बिकॉज कि मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेरे पेट का सवाल है, और मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पढ़ाना अच्छा लगता है। तो हम एक डिजिटल मार्केटिंग का डिटेल प्रोग्राम लेके आए, क्योंकि आप जो भी करोगे जब तक बेटर नहीं कर सकते जब तक आप अपनी बढ़िया ऑनलाइन प्रेजेंस, ऑनलाइन ब्रांडिंग, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, लीड जनरेशन आप कर ना पाओ, तब तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो हम आपको इसमें सिखाएंगे, 4 महीने का प्रोग्राम है। यू वोंट बिलीव सर, दिस ट्रेनिंग इज डुअल लैंग्वेज। अगर आपको हिंदी समझ नहीं आती, यू कैन आस्क इन इंग्लिश। दिस प्रोग्राम इज ऑफ 4 मंथ, 3 महीने का है। इफ यू कांट एबल टू डू इट, यू कैन कंटिन्यू इन 4 मंथ, यू कैन कंटिन्यू इन 5 मंथ ऑल्सो, बट यू विल teach you. It is a live program, sir. It is a live program. Okay, we will teach you how you can make very good quality of audit. How you can audit. भाई आपको डिजिटल मार्केटिंग करना, पर ऑडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिटिंग मीन्स आप कैसे अपने कस्टमर को डील करते हो, कैसे उसमें आप अपना ऑडिट करते हो। ऑडिटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर क्या करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो करते हैं, बट दे डू नॉट नो कि उनकी ऑडिटिंग फील्ड है क्या, क्या उनको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपके पास आता है हाउ दे कैन मेक देयर ऑनलाइन प्रेजेंस, हाउ दे कैन ऑनलाइन मेक देयर प्रेजेंस ऑन विकिपीडिया, हाउ दे कैन लिस्ट ऑन द डायरेक्टरीज पे कैसे लिस्ट कर सकते हैं। इवन डायरेक्टरीज पे जब लिस्ट करोगे ना, तो बहुत अच्छी क्वालिटी से बहुत कम दाम में आप आ सको। हाउ यू कैन मेक योर एनिमेटेड वीडियोस, गुड क्वालिटी वीडियोस, और इसमें आपको किसी भी तरीके का फोटोशॉप की जानकारी नहीं है। आई एम डैम श्योर आप बहुत अच्छी क्वालिटी के वीडियोस बना पाएंगे। Second, how you can edit the videos, render the videos, cut the video, informative videos, सारे आप बना पाएंगे खुद के खुद। इसके बाद अब why I am studying about videos, पहले तो कंटेंट होना चाहिए। आप जा रहे हैं फतेह करने, पर मसाला तो होना चाहिए। Then ebook, how you can publish your ebook on Amazon, Kindle, how you can apply on Icebeam. After that, content is बन गया। अब how you can do the WhatsApp marketing with CRM, आप सीआरएम से कैसे कर, चैट बोटिंग कैसे कर सकते हो, बल्ब ब्लास्टिंग कर सकते हो, ये सब हम बताएंगे आपको व्हाट्सएप मार्केटिंग। देन फॉलोड बाय सोशल मीडिया मार्केटिंग बाय फ्री टूल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पे टूल, फ्री टूल, चाहे आप ट्विटर मार्केटिंग हो, कोरा मार्केटिंग हो, अलग अलग मार्केटिंग। देन इट इज फॉलोड बाय वेबसाइट मेकिंग। यू कैन मेक योर वेबसाइट इजीली, इफेक्टिवली, चाहे ई कॉमर्स वेबसाइट हो, चाहे उसमें ईमेल इंटीग्रेशन हो, चाहे उसमें थीम इंटीग्रेशन हो, चाहे प्लगइन इंटीग्रेशन हो, आप मार्केटिंग के लिए अपने प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट बना पाएंगे। Followed by search engine optimization, means if you want to rank your website, if you want to rank your content, how you can do it? You can do it when you know how the keywords work, and SEO is not important. Audience retention is most important. बहुत लोग हैं कहते हैं SEO कर देते हैं, टॉप पे ला देंगे, नहीं, these are making fools. SEO without audience retention is just no way. बिना ऑडियंस रिटेंशन के कभी एसईओ काम नहीं कर सकता। तो दोनों का काम होता है। एंड एसईओ इज ऑफ 3 टाइप्स, ब्लैक हैट, ब्लू हैट, ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट हैट। कभी भी ब्लैक हैट एसईओ नहीं कराना, नहीं तो आपकी वेबसाइट ब्लैक लिस्ट हो जाएगी। 10 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पावरफुल सेल्स मैग्नेट। आपको सेल्स को कन्वर्ट कैसे करना है, हाउ कैन मेक अ लैंडिंग पेज, हाउ कैन डू द ईमेल ऑटोमेशन, हाउ यू कैन नर्चर योर लीड टू कन्वर्ट यू। मींस लीड जनरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लीड नर्चरिंग and converging the lead is most important. इसमें advanced sales funnel हम सिखाएंगे आपको। Then Facebook marketing, paid Facebook marketing, and this paid Facebook marketing will be explained by the Naman. He is ex-employee of the Google. Secondly, website will be explained by a different person who is expert in website designing. Google AdWords will be explained by Naman. Naman is a ex Google employee. 4 टीचर आपको पढ़ाएंगे, सत्या, लोकमान सर, he have 20 years of experience, 2 टेक्निकल गाइस और एक वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट भी आपको बताएगा। 4 टीचर आपको बताएंगे विद कंटेंट राइटिंग। इसके साथ कुछ चीज और आपको फ्री, एफिलिएट मार्केटिंग में अमेजन पे कैसे प्रोडक्ट आप कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट पे कैसे प्रोडक्ट कर सकते हैं, होलसम सारी जानकारी आपको दी जाएगी अच्छी तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। और आई एम डैम श्योर इस कॉस्ट पे, एट ए कॉस्ट ऑफ जस्ट 5000 रुपीज, भाई 5000 रुपए ज्यादा नहीं है, 5000 रुपए में हम आपको लाइव ट्रेनिंग दे रहे हैं। पहली बार 1 ईयर तक का आपको पास सपोर्ट है, आप कंटेंट देख सकते हैं 1 साल तक। 10 to 12 समझ नहीं आया रात में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, सर हमें समझ नहीं आया, वी कैन गाइड यू। एंड विद दिस ट्रेनिंग वन मेन ट्रेनिंग इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, दिस इज गूगल सूट, जिसकी एकमात्र कॉस्ट आप देखोगे मार्केट में, दैट इज मोर देन 3000 रुपीज।
जो 3000 से ज़्यादा है। तो ये सारी ट्रेनिंग आपको बताने वाले हैं। इसके साथ साथ बहुत हम हीलिंग की ट्रेनिंग लेके आते हैं, डॉक्टर्स को बुलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कराते हैं जो आप साथ साथ कर सकते हैं। टू बी मतलब पोलाइट विद यू, मेमोरी ट्रेनिंग इस पार्ट से हमने निकाल दिया है, जो टॉपिक से अलग था। हाँ, ऑनलाइन टीचिंग, हाउ यू कैन बिल्ड योर ऑनलाइन टीचिंग बिजनेस, इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो आप इसके साथ कर सकते हैं ताकि आप अपना अपना ऑनलाइन कोर्स बना सकें, आप पब्लिश कर सकें। सो द कॉस्ट इज जस्ट 5000 रुपीज, 4999 वन टाइम आप पे कर सकते हैं। और आप सबका स्वागत है, जो भी इंटरेस्टेड है। मैं गारंटी देता हूँ, nobody in this world, whether it is Siddharth Rajshekhar, whether it is anybody trainer, I am damn sure the quality of live training we are offering, nobody in the world can offer with 7 days money back challenge। पसंद नहीं है, आप पैसे वापस ले सकते हो इफेक्टिव तरीके से। और मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ, बहुत ही जल्दी हम आपके सिविल लाइंस के स्लम के बच्चों को ट्रेन करने वाले हैं। These kids will be conducting डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन 5-star होटल्स। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो आशा करता हूँ हमसे आप जुड़िए और सीखिए, समझिए। और आज के इस वेबिनार में आपको लगे कहीं गलती हुई हो, देखिए कहाँ आपको लगे कि सत्या शायद गलत बोल गया या कुछ कंटेंट और ऐड कर सकते हैं, तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना फीडबैक शेयर करें कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, कहाँ आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज एक एक करके केवल 3 लोग अपना फीडबैक वीडियो फॉर्मेट में देंगे ना, सब मुझे बहुत मजा आएगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज। आप में से कोई भी वीडियो खोल के अपना फीडबैक दे सकता है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।